السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیے، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا 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 اچھا۔ اور بولیے، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں وہی بول رہے ہیں کہ جو دیوبند کا جو عالم لکھا ہے کہ شرابی جو پڑھاتا ہے تو حافظ کا پیسہ وغیرہ نہیں دینے کے لیے کیا ہے؟ حرام لکھا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور سامعین کرام کو اس کے متعلق بتانے سے قبل میں یہ آگاہ کر دوں کہ دیوبندی دھرم کیا ہے نا؟ دیوبندی کس کو بولتے ہیں؟ دیوبندی وہابی۔ تو ایک کتاب ہے، اس میں صحبت باولیہ، بلکہ کئی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے نا؟ تحفہ قادیانیت میں صفحہ نمبر 125 میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور صحبت باولیہ صفحہ نمبر 172 میں لکھی ہوئی ہے، جس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں۔ مولانا زکریا کاندھلوی صاحب لکھی ہوئی کتاب میں اس میں پرنٹ ہے، انہوں نے تصنیف کیا ہے، جو امیر تبلیغی جماعت سے اس کو جانتے ہیں، سمجھے؟ ہلو، ہاں بتائیے۔ ہاں، تو یہ لکھتے ہیں، ہمارے اکابر حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب قاسم اور رشید پیدا ہونے سے رہے، بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ۔ تو دیوبندی اور وہابی دھرم کیا ہے؟ رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی کی اتباع کرنے والے کو دیوبندی کہتے ہیں، سمجھے؟ تذکرۃ الرشید میں صفحہ نمبر 17 جلد نمبر 2 میں لکھا ہے، سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ یعنی رشید احمد گنگوہی دعویٰ کر رہے ہیں جس کو بھی ہدایت اور نجات چاہیے میری اتباع کرے، اور یہ دیوبندی اسی کو کہتے ہیں جو رشید احمد گنگوہی کی اتباع کرتا ہے، اس کے فالو کرتا ہے۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے تھے، قرآن میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ لیکن ان لوگ کس کی اتباع کرتا ہے؟ نبی کا یہ کر رہا ہے، نبی ہونے کا وعدہ کر رہا ہے۔ ہاں ہاں، ہدایت اور نجات انہی پر موقوف ہو گیا، نبی ہونے کے دعویٰ، نبی سے بڑھ کر ہو گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ نہیں کیا، سمجھے؟ بہرحال در پردہ نبی بننے کے چکر میں یہ اپنے آپ کو کہا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں، جو اکابر دیوبند کے نقش قدم پر نہ چلے وہ مسلک دیوبند سے ہٹا ہوا ہے۔ لکھی ہوئی کتاب میں مسلک دیوبند کسی فرقے کا نام نہیں، اتباع سنت کا نام ہے۔ صفحہ نمبر 39 میں رفیع عثمانی دیوبندر نے لکھا ہے اس کو۔ تو پتہ چلا کہ اکابر دیوبند کے نقش قدم پہ چلنے والے کو دیوبندی کہتے ہیں، دیوبندی وہابی کہتے ہیں، سمجھے؟ اب جی یہ بات آ گئی تو ہم اب پتہ کرتے ہیں، رمضان المبارک کا ہے جو سوال کر رہے تھے اب، کہ رشید احمد گنگوہی اتنی بڑے ان لوگوں کے اکابر ہے، اتنے بڑے اکابر ہے، اگر اس کے اتباع نہ کرے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اس کی پیروی نہ کرے تو ان کو ہدایت اور نجات نہیں ملے گی۔ اتنی بڑی ان لوگوں کا عقیدہ اتنا مضبوط بنا ہوا ہے رشید احمد گنگوہی پر، سمجھے؟ تو انہوں نے فتویٰ دیا ہے فتاوی رشیدیہ میں، سن رہے نا؟ جی فتاوی رشیدیہ ہے، ان کے معتبر بہت بڑے مستند کتاب فتاوی رشیدیہ، صفحہ نمبر 392 اور 93 میں لکھا ہوا ہے، رشید احمد گنگوہی ان کو یہ لوگ غوث اعظم بھی کہتا ہے۔ بہرحال ہم لوگوں کا تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی جو بغداد میں ہیں ان کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں دیوبندی لوگوں کا ہے یہ دیوبندی وہابی کیا فتویٰ دیتا ہے، سنیے۔ لکھتا ہے، حافظوں کو اجرت پہ قرآن سنانا حرام ہے اور اجرت بھی ناجائز ہے۔ اذان و اقامت اور تعلیم و وعظ اس کو متاخرین نے بوجہ ضرورت استثناء کیا ہے، یعنی اذان دینے کو اقامت کہنے والے اور تعلیم دینے کے لیے واعظ وغیرہ، واعظان تقریر کرنے والے کے لیے یہ سب اس کو الگ کر دیا ہے، لیکن اس کو قرآن میں
कोई जरूरत नहीं है, आगे लिखा कुरान में कोई जरूरत नहीं है। जिसने कुरान सुनाने वाले को अजान पर कियास किया वो गलत है। फतवा रशीदिया सफा नंबर 392 और 393 में लिखी हुई है। आगे यही लिखता है, फतवा देता है, तरावी में कलामुल्लाह पढ़े या सुने उसकी उजरत देना हराम है। क्या कह रहे हैं? उसकी उजरत देना, यानी पैसे उसके तनख्वाह के हिसाब से, या तरावी जो सुनाता है 10 रोज 15 रोज 11 रोज 20 रोज जो भी सुनाता है, उन हाफिजों को उजरत देना, वो ये पैसा वगैरह देना हराम है कह के फतवा रशीदिया सफा नंबर 393। मालूम हुआ कि तरावी पढ़ाने में उजरत लेना भी हराम और देना भी हराम है। ये देवबंदी धर्म के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। आगे दूसरी और किताब में है, यूसुफ लुधियानवी देवबंदी से सवाल पूछा गया तो जवाब में लिखता है, उजरत लेकर तरावी पढ़ाना, सुन रहे ना, उजरत लेकर तरावी पढ़ाना जायज नहीं और ऐसे हाफिज के पीछे तरावी मकरूह तहरीमी है। आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 432 में ये फतवा मौजूद है। तो फाजिले देवबंद और मुफ्तियाने देवबंद के नजदीक अगर उजरत लेकर के, यानी देने की नियत हो या लेने की नियत हो, हर तरह से वो नाजायज व हराम है। और अगर ऐसी नियत से हाफिज को रखा गया है तो उसके पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, यानी हराम है कह करके नमाज पढ़ना उसके पीछे हराम है। अब जो भी हाफिज देवबंदी जितनी भी मस्जिद में पढ़ा रहे हैं, उसका अगर लेने देने की नियत भी है और आवाम देने की भी नियत की है तो भी उसके पीछे नमाज तरावी पढ़ना मकरूह तहरीमी हराम है। तो जितने भी अभी देखिए, इससे कोई छुटकारा नहीं है। अभी जितने भी मस्जिदों में देवबंदियों के सब लेता है, पैसे लेते हैं और वसूल भी किया जाता है उसके लिए। तो वसूल करना, लेना, अवाम को देना, उसके लिए सब हराम होना जायज है, उसके पीछे मकरूह तहरीमी। ये मैंने एक फतवा लगा था, ये बड़े आपके देवबंदी लोग फतवे लगाए हैं। और सुनिए, रिफात कासमी फतवा दारुल देवबंद के हवाले से लिखता है, उजरत पे कुरान शरीफ पढ़ना दुरुस्त नहीं है, इसमें सवाब भी नहीं है। क्या कहते हैं? इसमें सवाब भी नहीं है। और बहुक्मे अलमारूफ कल मशरूत, जिसकी नियत लेने देने की है वो भी उजरत के हुक्म में है और नाजायज है। मसाइल रिफात जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 92 में लिखी हुई है। समझे? तो इन हवालाजात जो मैं पेश किया हूं आपके सामने, इससे वाज़ेह हो गया तरावी में कुरान शरीफ उजरत पे सुनानी हराम है और उसमें सवाब भी नहीं है। और कलामुल्लाह पढ़े या सुने या सुनाए उजरत देना भी हराम और लेना भी हराम। और अगर कोई बिला उजरत तय किए सुना रहा है, बिला उजरत यानी ये पैसा कोई तय नहीं किया, ऐसे ही सुना रहा है, लोग या सामीन हाफिज से जो सुन रहे हैं कुरान, मगर दिल में लेने देने की नियत हो, यानी ये हाफिज खत्म करेगा, बड़ा अच्छा पढ़ रहा है, इसको मैं दूंगा, ऐसे नियत कर लिया हो, तो बहुक्म इन अकवाले देवबंद के, समझे, नाजायज व हराम और बिल्कुल सवाब भी नहीं है और उसके पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी हराम है। कोई इससे खाली नहीं है। समझे? इन तालीमाते अकाबिर के खिलाफ वर्जी और इससे बगावत का तमाशा हर साल रमजान में किया जाता है। मगर ये सब के सब सारे जरूरियत दयाबना वहाबिया को अपने अकाबिर को लात नहीं मारनी चाहिए, बल्कि अपने अकाबिर पे अमल करनी चाहिए, उसकी इत्तिबा करनी चाहिए, वरना हिदायत व निजात नहीं मिलेगी। समझे? नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं मिलेगी। उनकी ये दावा किया है ना, रशीद अहमद गंगोही इन लोगों के बहुत बड़े अकाबिर है। अच्छा, ये रमजानुल मुबारक में ये देवबंदी मस्जिद में जाइए, आप देखिए, है ना, उसके पीछे नमाज पढ़ने के लिए आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बगावत, आप तो उससे चीड़ खाते हैं और ईमानी गैरत आपके हरारत आपको गवारा नहीं करता है कि उन लोगों के पीछे नमाज पढ़े, है ना।
تو آپ ان لوگوں سے پوچھئے آپ کہ آپ لوگ تراویح جو پڑھتے ہیں نا کتنے رکعت پڑھتے ہیں، پوچھئے گا تو آپ کو جواب دے گا 20 رکعت۔ کیا کہتا ہے؟ 20 رکعت پڑھتے ہیں کہا کہ دیوبندر لوگ بولے گا، اور پڑھتا بھی ہے 20 رکعت، تو اسے نہیں ہے کہ 8 رکعت پڑھتا ہے، 8 رکعت تو غیر مخلص پڑھتے ہیں نا۔ 20 پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سن لیجئے تاکہ سامعین بھی جان لیں اسے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب خلافت کا زمانہ آیا، ان کے دور آیا، تو انہوں نے دیکھا سب متفرق یعنی الگ الگ سب کوئی عبادت کرتا ہے رمضان میں، انہوں نے کیا کیا، اکٹھا کیا، اور جو بہترین حافظ قرآن تھا صحابہ میں، جو جن کی ٹون، جن کی آواز بہترین سریلی تھی، شاید اس کے نام حضرت عبد الرحمن ہے، تو انہوں نے یہ قرآن سنانا شروع کیا، سب صحابہ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، سب کو اکٹھا کر لیا رمضان المبارک میں، اس لیے کہ نوافل کی بھی جماعت ہوتے ہیں، اور یہ تراویح کی نماز تو ہمارے لیے ہم سنت مانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی دن ادا کی تھی، اور پیچھے ان کے صحابہ جمگھٹ معلوم ہوتے گیا کہ تراویح نماز پہ ادا کر رہے ہیں، تو ان کے پیچھے بہت صحابہ جمع ہونے لگے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف سے ترک فرمایا کہ کہیں یہ نماز ہمارے صحابہ کے شوق دے کر فرض نہ ہو جائے، اس خوف سے امت پر بہت شفیق رہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے جناب کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، احسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک آیت میں ہے کہ مومنوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان ہیں، اور ان کی تکلیف کو نہیں برداشت کر سکتے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مہربان ہیں، اپنی امتوں پر، اپنی امتوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ بہرحال تمام صحابہ کا اجماع کیا ہو گیا، 20 رکعت ہو گیا، کیا ہو گیا، 20 رکعت اجماع ہو گیا، اور اجماع کے جو مخالفت کرتا ہے، وہ اجماع کے جو صحابہ کے دور سے اجماع ہے۔ اب ہم لوگ اجماع پر صحابہ کے دور سے یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ڈائریکٹ علم حاصل کیا، ان لوگوں کو زیادہ معلوم ہوگا، ہے نا، ہم لوگوں کو کیا معلوم، ہم لوگ تو حدیث اور قرآن جو ملا ہے وہی تک محدود ہے، ہم لوگ اسے دین سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سیکھا کرتے تھے، اور وہ لوگ بیان کرتے تھے، اور انہی لوگوں کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ 20 رکعت وہ پڑھے اور جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، اسی لیے ہم لوگ رمضان المبارک میں 20 رکعت سنت تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور یہ اجماع ہے صحابہ کا اور تمام مسلمانوں کا۔ اجماع کے مخالفت، اجماع کے جو خلاف کرتا ہے، دیوبندی کیا فتویٰ دیتا ہے سنیے گا۔ دیوبندیوں کے علامہ ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب لکھتے ہیں، تمام اہل سنت اجماعی امت کے دلیل شرعی مانتے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، دلیل شرعی مانتے آئے ہیں، اجماع امت کا مخالف بنص کتاب و سنت دوزخی ہے۔ تجلیات صفدر جلد نمبر اول صفحہ نمبر 287 میں لکھے ہوئے ہیں کہ جو اجماع کے مخالف کرے وہ کیا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے، دوزخی ہے، کہہ کے فتویٰ دیے ہیں، سمجھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جی۔ ماسٹر امین صفدر اکاڑوی صاحب مزید لکھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجماعی فیصلوں سے انحراف کرنے والوں کو شیطان اور دوزخی قرار دیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، اجماعی امت کے فیصلوں سے انحراف مانے بغاوت کرنے والا، اس سے پھر جانے والا، اس سے الٹ کرنے والا، جو بھی کہہ سکتے ہیں، انحراف کرنے والے کو شیطان اور دوزخی قرار دیے ہیں، مطلب کہ تجلیات صفدر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 189، سمجھے۔ تو بہرحال اجماعی امت سے انحراف کرنے والا کیا ہے،
हाँ, शैतान भी है, जहन्नमी भी है, दोज़खी भी है, और किताब व सुन्नत के नस का मुखालिफ करने वाला दोज़खी है, वो कह के फतवा दिए हैं। और किताब व सुन्नत यानी कुरान और सुन्नत के मुखालिफ करने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? कुरान और हदीस के खिलाफ चलने वाले को क्या कहते हैं रामा साहब? जी, कुरान और सुन्नत यानी कुरान और हदीस के खिलाफ करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं दूसरी जबान में? जहन्नमी बोलते हैं। जहन्नमी तो है ही, काफिर है वो, काफिर भी है। जी जी। कुरान और हदीस के खिलाफ करने वाला मुसलमान रहेगा वो? नहीं रहेगा। तो यही फतवा दिया है वो, क्या कहा है, किताब व सुन्नत के मुखालिफत करने वाला दोज़खी है कह के। लेकिन हम एक किताब देवबंदियों के अकाबिर का, बहुत बड़े अकाबिर है, इनको रशीद अहमद गंगोही जो इन लोगों को गौसे आजम है, वो भी बराहीन कातिया बहुक्वे रशीद अहमद गंगोही लिखा है खलील अहमद अम्बेटवी ने। इसमें सफा नंबर 8 खोलिए, देखिएगा। तरावी 20 पढ़नी बिदात है, 8 सुन्नत है, कहे हैं क्या लिखे हैं? तरावी 20 पढ़नी बिदात है और 8 सुन्नत हैं। 8 रकात सुन्नत। 8 रकत के क्या है इन लोगों के नजदीक, देवबंदरों के नजदीक सुन्नत है। तो सुन्नत के मुखालिफ करने वाला क्या है? दोज़खी है, जहन्नमी है, किताब व सुन्नत के खिलाफ करने वाला है। ये पैगाम दे रहा है ये बराहीन कातिया वाले रशीद अहमद गंगोही और खलील अहमद अम्बेटवी ने बराहीन कातिया सफा नंबर 8 में। और इनके दूसरे अकाबिर कह रहे हैं कि किताब व सुन्नत के मुखालिफ वो फतवा दे वो जहन्नमी और दोज़खी और काफिर है। तो घर के फतवे से ये लोग काफिर हुआ कि नहीं? काफिर हो चुका। घर के फतवे से जहन्नमी दोज़खी हुआ कि नहीं? बोलिए। घर के फतवे से जहन्नमी और दोज़खी हुए कि नहीं? जी। और ये आगे लिखा बराहीन कातिया में सफा नंबर 195 में, और सुन्नत मुअक्कदा होना तरावी का 8 रकत तो बइत्तफाक है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, झूठ बोला है, समझे, झूठ बोला है। सहाबा के मुखालिफ करके ये सोच रहा है कि हम बड़े तुर्रम खां हैं। हालांकि ये लोग वहाबियत के बुनियाद को यही लोग मजबूत किया है। लेकिन देवबंदर अपने अकाबिर की किताब को पढ़ता नहीं, बस ये दावा करता है कि हम रशीद कासिम के पैरोकार हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, अकाबिर के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। लेकिन ये लोग 20 रकत पढ़ रहा है ना, अकाबिर के नक्शे कदम पे कहाँ चल रहा है? अगर अकाबिर के नक्शे कदम पर चलता, रशीद अहमद गंगोही की पैरवी करता, खलील अहमद अम्बेटवी, कासिम नानतवी की पैरवी करता, तो ये 8 पढ़ता ना। बेइत्तफाक क्या लिखा है? सुन्नत मुअक्कदा होना तरावी का 8 रकत बेइत्तफाक है। बराहीन कातिया सफा नंबर 195 में लिखा है खलील अहमद सहारनपुरी देवबंदी ने बौक में रशीद अहमद गंगोही। और इसे जमीमा जो लगाया है मंजूर नुमानी देवबंदर, इसके बहुत बड़े अकाबिर हैं, वो उसमें जमीमा लिखा हुआ है मंजूर नुमानी का। तो बताइए, अकाबिरीन देवबंद के नक्शे कदम पर ना चल करके अपने अकाबिर का भी बगावत कर रहा है। और इनके अकाबिर उन्हीं के फतवे से, मैं नहीं कहता, मैं अपने तरफ से फतवा नहीं लगाता कि नस किताब व सुन्नत के मुखालिफ करने वाला दोज़खी फैसला दिया है, और जहन्नमी भी फतवा दिया है, और दोज़खी भी फतवा दिया है। ये इन्हीं लोगों का जूता इन्हीं लोगों के सर पे मैं मारता हूँ, है ना। तो इन लोगों का फतवा इन्हीं लोगों को काम आ गया। और इनके अकाबिर को मुबारकबाद दीजिए कि जहन्नम में जल रहे हैं, दोज़खी भी हैं, काफिर भी साबित हो गए। समझे, समझ रहे ना? जी जी। तो हम तमाम मुसलमान से कहेंगे, देवबंदी धर्म ऐसा धर्म है जो जिस तरफ ये लोग रुख करता है ना, जिस तरफ भी अपने आप को सच्चाई साबित करने की कोशिश करता है, वैसे ही गहरा में जहन्नम के खाई में गिरना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही दलदल में खुद के उसूल से, खुद के फतवे से हम लोग को कुछ नहीं करना है। इनकी किताब को इन्हीं के चेहरे पे, इन्हीं के पीठों में लाद देनी है, बस इतना काम करना है। और उलमा को जो भी इन लोग वर्गलाते हैं,
आवाम को तो चाहिए कि उलमा से राब्ता रखें और इनके हर एक सवालात का जवाब है। इन लोगों के कुफरिया अकाइद जो है ना, उनको पर्दा डालने के लिए अहले सुन्नत व जमात पे भोगते हैं, फुसफुसे एतराज करते हैं मिसले भूसा के, हल्की सी हवा के झोंके में उनके एतराज समझे 2-4 हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो हमें चाहिए कि तमाम आवाम को मैं ये मशवरा दूंगा कि देवबंदी धर्म को आप जानें और पहचानें कि ये लोग दीन इस्लाम और सहाबा और किताब सुन्नत के मुखालिफ करने वाला धर्म ये लोग बनाया, जिसको अंग्रेज ने परवान चढ़ाया और अंग्रेजों की मदद से इन लोग इस्लाम को तहस नहस करने में लगाए। और हकीकत यही है, समझे। एक और बता दे रहा हूँ, इनकी झलक बता के, अभी रमजान मुबारक का महीना है, एक आपको उजागर कर दे रहा हूँ। कुरान अभी रात दिन आवाम पढ़ती है, पढ़ते हैं ना। हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें, और देवबंदी आवाम जो नहीं जानती है वो भी कहते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ें, सवाब ज्यादा होगा। लेकिन इनके अकाबिर का कुरान के मुतालिक क्या फैसला है और अकीदा क्या है जिस धर्म में वो लोग कायम हैं, देखिए आवाम की गलती नहीं है, आवाम नहीं जानती है, समझे। आवाम नहीं जानती है, बेचारा कलानाम की तरह है, इसलिए आवाम तक हम मेरा पैगाम पहुंचाएं और उनकी किताबों को दिखाएं। मैं तो स्कैन के साथ में डालूंगा, आप उनको दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। देखिए इनके अकाबिर है महमूदुल हसन देवंदर, देवबंदी इसको क्या कहते हैं, शेखुल हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखुल हिंद। मौलवी महमूदुल हसन देवबंदी, सदरुल मुदर्रिसीन देवबंद, दारुल देवबंद है ना, जिसके सदरुल मुदर्रिसीन एकदम हेड, कुरान पाक में इल्हाक होने के कायल हैं, लिखता है। इल्हाक जानते हैं, यानी कुरान पाक में कोई चीज मिलावट है, वो असल नहीं है। ऐसा अकीदा क्या किसका है, किसका है? यही क्या नाम बताया? हाँ, महमूदुल हसन जो शेखुल हिंद के सदरुल मुदर्रिसीन है। इनका अकीदा क्या है कि माज़अल्लाह कलामुल्लाह में इल्हाक है या महफूज नहीं है। देखिए कुरान मजीद क्या कहता है, कुरान मजीद हमें कहा कि मैं ही अल्लाह तबारक व तआला खुद जिम्मा लिया है, मैं कुरान का मुहाफिज हूँ, समझे, मैं हिफाजत करने वाला हूँ। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आते गए, नबूवत का दावा भी किया, जैसा कि मुसल्लिमा कज़्ज़ाब मरदूदों जैसा, और भी कई नबूवत का दावा किया। और किसी ने कहा 40 पारे। आज तक जो लोग कुरान को मिटाने की बात करते हैं वो खुद मिट जाते हैं और खुद मिट गए, है ना। लेकिन कुरान नहीं मिटा है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इसका मुहाफिज है। हमारा अकीदा कुरान पे है। लेकिन देवबंदियों के ये अकाबिर क्या लिखता है, कलामुल्लाह व हदीस में बहुत आयात व जुमला फिरक़े ज़ाल्ला ने इल्हाक किए हैं, चुनांचे सब पर जाहिर है। इज़ाहुल अदिल्ला सफ़ा नंबर 357 में ये लिखी हुई है। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, बोलिए माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह। हेलो जी आप बोलिए माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए यानी कुरान पाक महफूज नहीं है इनके नजदीक, बल्कि इनमें इल्हाकात हैं, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। जबकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की हिफाजत का खुद जिम्मा लिया है, समझे। देवबंदियों के ऐसे अकायद हैं, बताइए तो आवाम को मालूम नहीं है। ये कुरान जो है ना, हम लोग असल मानते हैं, 30 पारे का हम लोग का अकीदा है कि असल है, एक नुक्ता भी बढ़ा घटा नहीं है। लेकिन देवबंदियों के अकाबिर का ऐसा अकीदा है कि कुरान में मिलावट है, असल ये नहीं है। जैसा कि इज़ाहुल अदिल्ला अभी भी देवबंदी लोग छाप रहे हैं, लेकिन आवाम को बताइए और ये देवबंदी मुल्लाओं को आवाम जूते मारे कि कुरान का भी तहरीफ के कायल है, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और कुरान के तहरीफ के कायल बहुक्मे खुदाबंदी और बहुक्मे रसूल और बहुक्मे तमाम मुसलमानों के नजदीक ये साफ़ो शिफाफ है, वो
खुला हुआ काफिर है। क्या है? खुला हुआ काफिर। खुला हुआ काफिर है। तो इनके जो मौलवी लोग देवबंदी धर्म में चल रहे हैं, उनको आवाम को चाहिए कि जूते मारे और कुरान को गले से लगाए। हमारा कुरान सच्चा, हमारा दीन सच्चा, हमारा हदीस सच्चा। वक्त नहीं है, लेकिन हदीसों में भी इल्हाकात के इन लोग दावा किया है, जैसा कि इजाहुल अदिल्ला में कलामुल्लाह व हदीस में बाज आयात और जुमले फिर कई अल्लाह ने इल्हाक कर दिए हैं, यानी इसमें मिलावट कर दिए हैं। कुरान वो असल कुरान नहीं है। हदीस जो पढ़ते हैं हम लोग बुखारी मुस्लिम, वो असल हदीस नहीं है इन लोगों के नजदीक, इनके अकाबिर के नजदीक। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, चाहे वो सुन्नी अवाम हो या देवबंदी अवाम हो, वो नहीं जानते हैं बेचारे, तो इनको जान लें। इन लोगों का अकीदा कुरान इन लोगों के नजदीक महफूज नहीं। इन लोगों का अकीदा सुन्नत तराविया 8 रकात पढ़े। इन लोगों का अकीदा कुरान सुनाने वाले को उजरत देना हराम मकरूह तहरीमी, बल्कि नमाज उसके पीछे मकरूह तहरीमी है। लिहाजा उनके पीछे आप नमाज भी ना पढ़ें, उनको उजरत भी ना दें। देवबंदी अपने हाफिजों को तनख्वाहें उजरत ना दे कुरान शरीफ सुनाने की, वरना हरामकारी के मुब्तला होंगे। रशीद अहमद गंगोही के फरमान पे चलते हैं तो अपने अकाबिर पे नहीं, तो इसे अकाबिर को जूते मारे। आए हक की तरफ हम मुसलमान तमाम मिलकर के हदीस और कुरान को मजबूती से सामने। अल्लाह तबारक व तआला देवबंदियों के शर से तमाम मुसलमानों को महफूज रखे। आमीन। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।